Bismillahirrahmanirrahim. We are starting the coordinate geometry from the scratch. The first thing that we are going to study in the coordinate geometry is about the lines. Okay, there are 4 different type of lines that we have in our syllabus. Different type of lines, 4 different type of lines. Considering your x-axis and the y-axis, this is your x-axis and this is your y-axis. हम इसकी 4 different formations ले रहे हैं. Number 1, number 2, और फिर हमारे पास आएंगी नंबर 3. आगे अच्छा. First of all, we have a horizontal line. I think you can see that line easily. थोड़ी सी थिकनेस पढ़ाया था. फिर हमारे पास एक आती है वर्टिकल लाइन. ठीक है. और then we are taking 2 different type of lines. मतलब like this and like this. ठीक है. 1, 2, 3, 4. We have 4 different type of lines. What do we conclude from these lines? अगर गौर से देखें, number 1 that we are talking about is this one is said to be a horizontal line. ठीक है. और ये कहाँ ड्रॉ हुई है? अगर हम चेक करें हमारे नंबर्स 1, ये y का 1, y2 and y3. So I can say that this line has been drawn on y is equals to 3. ठीक है. Secondly, if I write numbers on the x-axis for this line in number 2, I can easily say that it is a vertical line. And it has been drawn where x is equals to 2. So remember that ये जो horizontal line है, its equation will be drawn on y, और जो vertical line है, its equation has been drawn on x. तो ये हमेशा opposite axis आपको लगेगा, क्योंकि जिस axis के line parallel है, कभी भी उसकी equation नहीं होती. If it is parallel to x-axis, तो ये y पे बनेगी equation, and this one is parallel to y-axis, तो equation x पर बनेगी. ठीक है, क्योंकि value ही x की होगी, y की वैल्यू हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो बेटे वी वर टॉकिंग अबाउट जनरली वी हैव. अच्छा मैं दोबारा शुरू से बताता हूँ सब कुछ बिल्कुल शुरू से. वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इन दिस पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस इन फ्रंट ऑफ यू पीपल. ठीक है. 4 मुख्तलिफ तरह की लाइंस आपके सामने ली गई हैं. एज यू कैन सी, अ हॉरिजॉन्टल लाइन, अ वर्टिकल लाइन, फिर स्लैंट लाइन और स्लैंट लाइन. ठीक है. So what is this all about? This is basically the type of lines in which we will study about the gradient. ठीक है. अब gradient क्या है? Generally when we talk about the gradient बेटा, तो gradient हम कहते हैं हमारी लाइन की steepness को. The steepness of a line is called gradient. Steepness क्या है? लाइन का slope. यानी कि means we are talking about the incline or the decline of my line. मेरी लाइन का incline और मेरी लाइन का decline is all about the gradient. यहाँ तक अगर कुछ प्रॉब्लम है gradient के अंडरस्टैंडिंग में, so you can ask me again. And if this thing is clear, so we can easily talk about the different type of lines. हमने 4 different type of lines draw की थी अपने पास कुछ इस तरह से. Obviously this is said to be a horizontal line. है ना. मेरी कौन सी लाइन कहलाएगी है? मेरी horizontal line कहलाएगी है. And this is said to be a vertical line. और फिर नंबर 3 नंबर 4 में slant lines हैं, लेकिन slant lines की
डिफ्रेंसिएशन भी अलग अलग है, उसको हमें समझना पड़ेगा कि उसमें किस टाइप की क्या क्या लाइन्स हैं। ठीक है, हम ग्रेडियंट की बात कर रहे थे स्लोप की। कैन यू सी इन द फर्स्ट वन, इज देयर एनी स्लोप इन द हॉरिजॉन्टल लाइन? कोई स्लोप नहीं है। जो जनरली हम ग्रेडियंट के लिए सिंबल यूज करते हैं दैट इज द एम। क्या है सिंबल इसका? एम, स्मॉल एम। So what about the gradient of the first line? The gradient of the first line, whereas there is no steepness, is 0. इस बात में किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क मी अगेन कि सर इसका ग्रेडियंट 0 कैसे हो गया? ठीक है, यू कैन आस्क मी, यू कैन राइट दैट टू मी इन द मीटिंग चैट अगर प्रॉब्लम है तो। द सेकंड थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल लाइन, the most steep line one can have is a vertical line. इससे ज्यादा steep line आपको या steeper line आपको नहीं मिलेगी. That is why the gradient of the vertical line is infinity. ठीक है, सही है। फिर आते हैं नंबर थर्ड पे। नंबर थर्ड में क्या है बेटा? You need to check the right corner of your line. What you need to check? The right corner of your line. दो कॉर्नर है, ये लेफ्ट कॉर्नर है, ये राइट कॉर्नर है। So where is the right corner? The right corner is at the top of the graph. मतलब लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। So the gradient obtained by it will always be positive. ऐसी लाइन से मिलने वाला ग्रेडियंट हमेशा हमेशा कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और if the right corner is not going above, अगर वो राइट कॉर्नर कहाँ जा रहा है मेरा? अब आप गौर से देखें, in the fourth one the right corner is at the bottom, है ना? कहाँ आ गया? नीचे की तरफ आ गया, is at the bottom of my graph, मतलब the line is going down. In this case my gradient will always be नेगेटिव। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रेडियंट होने का चल गया पता जब आपकी लाइन का कोई ग्रेडियंट नहीं होगा। कब होगा? विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन होगी द ग्रेडियंट विल ऑलवेज बी मैक्सिमम मींस इंफिनिटी, व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि इतनी स्ट्रेट लाइन आपके पास क्वेश्चन में आए, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन तक है, इसके अलावा इससे वास्ता नहीं। फिर whenever we draw any line, so we can always mark at least two coordinates on a straight line. At least two coordinates on a straight line. वो किस तरह से समझाते हैं आपको? कोऑर्डिनेट्स होते क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये तो बेटा, कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस पहले और वाई एक्सिस बाद में। कभी ऐसा भी मिलेगा, कभी हमें अपनी जरूरत के हिसाब के दो कोऑर्डिनेट पॉइंट प्लॉट करने होंगे, तो x1 y1 एंड x2 y2, कम से कम दो, तो बाकी मैक्सिमम पता नहीं कितने भी सकते हैं, डिपेंड करता है लाइन के हिसाब से। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जरा गौर से देखेंगे। अब अगर मुझे इस वाली लाइन का ग्रेडियंट तो मालूम हो गया कि इसका ग्रेडियंट 0 है, इसका इनफाइनाइट है, लेकिन इसका ग्रेडियंट मुझे बस ये पता है कि पॉजिटिव होगा, बट व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड की उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी नहीं पता, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी नहीं पता, बस ये पता है कि ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। तो व्हाट इफ आई नीड टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ सच टाइप ऑफ लाइंस, मुझे इसका ऐसी लाइन का ग्रेडियंट अगर कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो मैं क्या करूंगा? इंतहाई आसान काम है। क्या करते हैं जरा देखिए मेरे साथ। चलो जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मार्क द पॉइंट्स। x का 1 2 3 4 5, y यहाँ 0 का ऑब्वियस सी बात है, 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4 and 1 2 3 4 5. As I already told you that we can at least mount or mark two coordinates. जैसे अगर मैं इस coordinate की बात करता हूँ, so it is coming x का 2 और y का भी 2. Same goes for this point, x का 5 और y का 4. Same goes for this point, x is 0, y is 1. तीन कोऑर्डिनेट तो प्लॉट कर लिए ना एटलीस्ट, है ना? हमें मिल ही गए।
सिमिलरली दूसरी लाइन की बात करते हैं नंबर 4 वाले में. एट दिस पॉइंट here x is 0 but the height of the line is 4, so that's why the value of y is 4. Same goes, हमें ये कोऑर्डिनेट पूरा मिल रहा है. here x is 5 and y is 1. अब आप और से देखें, मैं इनके अलावा कोई भी पॉइंट एग्जैक्ट प्लॉट नहीं कर सकता. मतलब अगर ये मैं प्लॉट करूंगा, यहाँ मुझे x का तो 4 मिल जाएगा लेकिन y मुझे एक्यूरेट नहीं मिलेगा. सिमिलरली मैं ये पॉइंट प्लॉट करता हूँ तो x का 3 मिल जाएगा, y मुझे एक्यूरेट नहीं मिलेगा. आई नीड एक्यूरेट पॉइंट्स, एग्जैक्ट पॉइंट्स. ठीक है. सो इफ आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वैल्यू, इट मींस माय कोऑर्डिनेट इज नॉट करेक्ट. हमें इमेजिनरी या कंसीडरेबल वैल्यूज नहीं लेनी होती. इस हिसाब से तो मुझे x1 y1 और x2 y2 तो एटलीस्ट मिल ही गए ना. फ्रॉम दीज 3 कोऑर्डिनेट्स आई विल टेक एनी 2 कोऑर्डिनेट्स. फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई मैं ये 0 1 वाला कोऑर्डिनेट नहीं लेता, मेरा बाकी दो से काम बन जाएगा. आपकी मर्जी, आप 0 1 वाला लें और 5 और 4 या 2,2 ना लें. एनी 2 कोऑर्डिनेट्स कैन बी यूज्ड. ठीक है. टू कैलकुलेट व्हाट? टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट. तो लेट्स सपोज ये मेरी लाइन 3 है और ये मेरी लाइन 4 है. ठीक है. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग मी. उन्होंने एग्जांपल में से क्वेश्चन ले लिया. नंबर 1 बोल के कैलकुलेट द gradient of the line 3 and 4. लाइन 3 और लाइन 4 का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला इज रियली सिंपल, इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं है. फॉर्मूला इज रियली सिंपल. क्या करेंगे फॉर्मूला के लिए? ये देख लीजिएगा ग्रीन कलर में ग्रेडियंट का सिंबल और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. मतलब क्या मतलब वो इस बात का? चेंज इन दी y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन दी x एक्सिस. ये चेंज इज डेल्टा. आपको पता ही होगा, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं डेल्टा. और जो बच्चे फिजिक्स वाले नहीं भी हैं उनको पता होना चाहिए डेल्टा, ये ट्रायंगुलर शेप जो इट मींस चेंज. चेंज इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड फाइनल माइनस इनिशियल. या आप यूं कह लें कि राइज ऑफ योर लाइन टू बी डिवाइडेड बाय रन ऑफ योर लाइन. ठीक है. ये तीन चीजें एक ही बात है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक. लेट्स डू इट. हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से यूज करने वाले हैं? हम लाइन 3 के लिए यूज करते हैं पहले. ठीक है. लाइन 3. हाँ भाई, दो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? वी आर टेकिंग दीज. आप ये दो लें या फिर ये दो लें या फिर ये दो लें. कोई भी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स लें तीन में से, योर आंसर विल रिमेन सेम एट एनी कॉस्ट. ठीक है बेटा. तो वी आर टेकिंग 2,2 5,4 फॉर एग्जांपल. क्या ले रहे हैं हम? वी आर टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स 2,2 एंड 5,4. लेट्स सपोज मैंने कहा भाई ये मेरा x1 और y1 है. ठीक है. और ये मेरा x2 और y2 है. आपकी मर्जी, आप किसी को भी x1 y1 ले लें, 5,4 को भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. बट रिमेंबर दैट अगर एक जगह 1 यहाँ पे तो 1 दूसरा 1 भी इसी में चाहिए. ये ना हो कि x1 और y2 हो रहा हो, ये गलत हो जाएगा. x1 y1 x2 y2 दोनों 1 एक साथ, दोनों 2 एक साथ. ऑलराइट. let's substitute these values in the formula above to calculate the gradient. So that says y2 minus y1. Gradient of the line 3 is equals to y2 minus y1. y2 is 4 and y1 is 2. Is x2 minus x1 means 5 minus 2. So what do I get? 5 minus 2. So 4 minus 2 is 2. 5 minus 2 is 3. That is the gradient of the line 3. अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है so you will leave that in the fraction the way it is. कोई मुश्किल बात नहीं थी ग्रेडियंट कैलकुलेट करना, इंतहाई आसान काम है by using the formula. ठीक है. मैंने राइज अपॉन रन से मैं नहीं बताया अभी आपको, अभी सिर्फ by using formula बताया है. ठीक है. राइज अपॉन रन क्या है ये भी देख लीजिए. And for that you are going to see this color और ये डॉटेड लाइन. ठीक है बेटा. क्या करेंगे? 5 से नीचे लेके आए कहाँ तक? 2 वाले पॉइंट तक. और ऐसे मेरे ट्राइंगल पूरा हो गया. तो ये मेरा रन आ गया हॉरिजॉन्टल वाला. ठीक है. रन कौन आ गया? मेरा ये हॉरिजॉन्टल वाला रन आ गया.
और वर्टिकल वाला मेरा राइज आ गया। कितना राइज है? 2 से 4 पे गए तो राइज है 2। कितना रन है? 2 से 5 पे गए तो रन है 3। तब भी आपका आंसर बन गया y ओवर x मीन्स 2/3। सेम आंसर आ रहा है, यू कैन चेक दैट इजीली। ठीक है, इजी समझ में आ गया आपको मेरी बात? तो ये बहुत सारे तरीके हैं बेटा। ये भी बन रहा है y अपॉन x मतलब 2/3। so you can use whatever the method you think is easier. Am I clear to all of you now? Hello, am I clear to all of you now? Is the voice lagging even now? Okay, good. Daraasal, my home is just opposite to Imam Barga. So whenever the majlis or any program is started there, so they use jammer by means of security. So that's why internet does not work well. इसीलिए कल की क्लास भी मैंने कैंसिल की थी। और जो है आज भी ऑब्वियसली यही प्रॉब्लम होगा क्योंकि मोबाइल डेटा और घर का इंटरनेट दोनों भी तंग कर रहे हैं। आई एम यूजिंग 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, स्टिल द प्रॉब्लम इज सेम। तो अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे आवाज का तो प्लीज मुझे बार बार बताते जाइएगा ताकि आई विल ट्राई टू मैनेज दैट। नहीं ओके, सर, अभी तक तो सही है। ओके, आप चलो आगे बढ़े। ग्रेट, ठीक हो गया। अब अगर लाइन 3 का ग्रेडियंट हमने निकाला कुछ ऐसा, भाई अब देखें हमने कहा था कि इसका ग्रेडियंट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और यस, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, यू कैन सी दैट पॉजिटिव है। ठीक है, लाइन 4 का भी सेम इसी तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे और कोई भी उतना मुश्किल बात नहीं है। कैसा मुश्किल बात नहीं है? इंतहा आसान तरीका। किसके लिए? आई एम टॉकिंग अबाउट दी लाइन 4। व्हाट आर वी रिक्वायर्ड? अब सीक्वेंशियल काम चलेगा। हमने लाइन 3 का किया, सबसे पहले क्या चाहिए था हमें? कोऑर्डिनेट्स। सो फॉर लाइन 4 आई एम आल्सो रिक्वायर्ड माय 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बेटा, 2 कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? 0,4, 5,1। चलिए जी मार्क कर लेते हैं इनको सबसे पहले। 0,4 पहला कोऑर्डिनेट और 5,1। फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, ऑलरेडी पता है हमें। तो 1 माइनस 4, 5 माइनस 0, आई गॉट माइनस 3 ओवर 5। अब ये 0.6 बन रहा है ऑब्वियसली नेगेटिव। तो यू कैन इजीली कंक्लूड कि मेरे पास एक नेगेटिव टर्म आ रही है, जो कि मैंने कहा था कि लाइन 4 का ग्रेडियंट आपको नेगेटिव मिलेगा। कैसे? क्योंकि उसका राइट कॉर्नर नीचे की तरफ जा रहा था। किसका? लाइन 4 का। आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू पीपल एंड देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मजीद। यहां तक ग्रेडियंट वाला पार्ट क्लियर हो गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इन्हीं दोनों लाइंस के लिए। वी आर कीपिंग द लाइन सेम। ये पार्ट 1 हमने किया था, क्या किया था? वी कैलकुलेटेड द ग्रेडियंट फॉर द लाइन 3 एंड 4, है ना? अब इसमें ग्रेडियंट के अलावा क्या क्या है ये दिखाते हैं आपको। So in the part 2, what we are going to calculate, in the part 2 we are going to calculate not just gradient, हमने gradient ऑलरेडी कर लिया है। Calculate the midpoint of line 3 and line 4। हमें इन दोनों का क्या चाहिए बेटा? मिड पॉइंट चाहिए, लाइन 3 का, लाइन 4 का। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला जरा अच्छी तरह सुन लीजिए। आई एम गोइंग टू राइट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। हम इसके किसी भी चीज के मैं एग्जाम्पल साथ साथ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या है बेटे? इंतहाई आसान किसी भी चीज का, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इट इज बेसिकली सेम एज द एवरेज फॉर्मूला। एवरेज में भी काम करते हैं आप, सम ऑफ द क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल। ठीक है, सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो दो क्वांटिटीज है ना, x1 x2, तो डिवाइड बाय 2 भी कर दिया। अब इसके लिए x1 x2 y1 y2 अगेन दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, अगेन दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हमने लाइन 3 का ये कोऑर्डिनेट्स वाला पार्ट
यहाँ से किया कॉपी और ये लगा लिया अपने पास, मेरे पास लाइन 3 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इंतहाई आसान काम, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। क्या काम करने वाले हैं हम इसमें, इनको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल सा काम है। किसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन 3, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 plus x2 upon 2 means 2 plus 5 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2, so 2 plus 4 upon 2. Okay, let's simplify that. 7 upon 2, आप चाहें 3.5 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 4 plus 2 6, 6 upon 2, 6 upon 2 मतलब 3। मैं जरा एक स्टेप डायरेक्ट कर लिया है, समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिएगा। ये लीजिए, आपको मिड पॉइंट मिल गया लाइन 3 का, सही है। लाइन 4 का डू योरसेल्फ, आई एम राइटिंग हियर। ये आज जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लेक्चर रिवाइज करेंगे, तो इसको आपने लाइन 4 का खुद निकाल के देखना है और आप मुझे बताएंगे कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। यू कैन शेयर द पिक्चर ऑफ योर वर्किंग एज वेल। ठीक है, मिड पॉइंट इजी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिड पॉइंट के बाद हमारे पास आता है लेंथ ऑफ द लाइन। क्या था मिड पॉइंट के बाद, लेंथ ऑफ द लाइन, हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या निकालना है मुझे अब, हमने पार्ट 2 कर लिया ना, पार्ट 3 पे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो द पार्ट 3 सेज calculate the length, calculate the length of the line 3 and 4। लाइन 3 और 4 का हमें क्या करना है, लेंथ निकालना है। अच्छा, लेंथ ऑफ द लाइन बोले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोले हैं, ऑल द थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला कैसा होता है इसका, डिस्टेंस का, किसी चीज का डिस्टेंस निकालना है मतलब लेंथ निकालनी है, तो एक ही बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट बड़ा सा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला भाई। अगेन फॉर्मूला को देख के चल जा पता कि हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, है ना। हमने अभी अभी लाइन 3 कोऑर्डिनेट्स कॉपी किया था, ये लीजिए लाइन 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, आगे इजीली अप्लाई कर लेंगे। तो असल गेम क्या है, दैट यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला शीट में कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं आता, सारे आपको याद करने पड़ेंगे, भले वो मिड पॉइंट के हो, ग्रेडियंट के हो, डिस्टेंस का हो, कोई भी फॉर्मूला हो। इस टॉपिक के सारे फॉर्मूला यू हैव टू मेमोराइज एंड दे आर नॉट गिवन इन एनी केस। चलें जी लगाते हैं। हमने लाइन 3 का कोऑर्डिनेट वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक हो गया। So I am going to use the formula mentioned above. x2 minus x1 means 5 minus 2, y2 minus y1 means 4 minus 2 और होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, इजी हो गया काम। नाउ वी कैन इजीली सिंप्लीफाई इट फर्दर। क्या करने वाले हैं हम, 5 minus 2 is 3, 3 का स्क्वायर, 4 minus 2 is 2, 2 का स्क्वायर। बेटा 3 का स्क्वायर is 9, 2 का स्क्वायर is 4, 9 plus 4 is under root 13। सर आंसर क्या यहाँ तक छोड़ दें? बताता हूँ ना, अभी बताता हूँ। This is the answer if you are going with a P1 means non calculator। ठीक है, P1 ये नॉन कैलकुलेटर लिखते हैं, ज्यादा सही रहेगा क्योंकि P1 सबका नहीं है। नॉन कैलकुलेटर में आपका आंसर ये रहेगा, भले कोई भी स्कूल हो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी करिकुलम हो, ओ लेवल्स, IGCSE, पियर्सन, एडिक्सल, कोई भी हो, AQS, सबका ये रूल है। ठीक है, और अगर इफ द कैलकुलेटर इज अलाउड तो यू तो क्या करेंगे आप अपने कैलकुलेटर में जाएंगे इस तरह से, कैसे, ऐसे, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, सो व्हाट डू वी हैव, रूट 13 क्या मिला मुझे, 3.605 मतलब 3.61। if the calculator is allowed then you will convert it in the decimals
otherwise you are going to leave your answer in the fraction form. ओके हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर? यस ईमान बेटे, एक्सेलेंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैंने अभी आपका मैसेज देखा, बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी आपने। अच्छा जी, सो डिस्टेंस भी आ गया। अब लाइन 4 का खुद करेंगे, वही सेम काम, ठीक है, ताकि साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। आप इसको घर पर बैठ के जब ये लेक्चर रिवाइज करेंगे तब कीजिएगा। आई विल अपलोड द वीडियो इंशाल्लाह बाय टुनाइट, लेट आवर्स टुनाइट और टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग, सो यू कैन वॉच दैट एंड देन यू कैन डू द प्रैक्टिस। आपको लेक्चर भी इंशाल्लाह टाइम से मिल जाएगा। चलिए जी, मूविंग फर्दर, अब एक चीज और आ जाती है हमारे पास, अब आएगी काम की चीज, इसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट। कभी कभी फाइंड लिखा आएगा, कभी कभी कैलकुलेट लिखा आएगा। Find the y-intercept of line 1, 2, 3 and 4। हमें चारों लाइंस का y-intercept निकालने का बोला है। अच्छा, तब y-intercept होता क्या है पहले तो ये सुनना। The symbol generally that we use for the y-intercept is c, ठीक है? How do we calculate that? If the diagram या ग्राफ कह लें आप is given, locate the point where the line, the diagram is given, locate the point where the line cuts the, क्या कट कर रही है वो? y-axis, where the line cuts the y-axis, जहां वो y-axis लिखा हुआ कट कर रहा है लाइन को, that point is y-intercept। कैसे करते हैं देख लीजिए। लाइन 1 के लिए, हाँ भाई, where the line meets or cuts the y-axis at y is equals to 3, it means the c is also equals to 3, ठीक है? क्या यहाँ पर c कट कर रहा है? तो यहाँ c कट ही नहीं कर रहा, so c will be 0। हाँ जी, is it cutting the or meeting the y-axis in this line? Of course it is meeting, that is why it is meeting at 1, hence the c is equals to 1। And if you see where this line cuts the y-axis, it cuts the y-axis at y is equals to 4, hence the c is also equals to 4। Okay, so this is how we find the values really very easily। फरिया बेटे उस पे भी आएंगे, जब ग्राफ नहीं होगा ना तब उस टाइप पे आएंगे। सर वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला है ना, हाँ कि मेरे बेटे उस पे भी y is equal अभी, to mx plus c। जी जी जी, अभी क्वेश्चन पे लेके आएंगे ना आपको, मैं खुद अभी वो इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा, परेशान हो जाओगे। तो डायग्राम देख के निकालना आ गया, क्या है? पहला C3, फिर 0, फिर 1 और 4, 3 0 1 4, आसान तरीका लगा बिल्कुल। 3 0 1 और लाइन 4 क्या था? 4 ही था। इजी हो गया, बड़ा आसान सा काम था। अच्छा ये तो हो गया, अब जरा गौर से सुनिएगा एक और पार्ट, क्योंकि इसी का पार्ट है, इसको आप कर लें ए, और अब मैं आपको करवा रहा हूँ एक बी पार्ट, ठीक है? और अब इस बी पार्ट में हम पहली बार इक्वेशन आपको क्या कराएंगे? इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कैसे करवाएंगे आप सुनिएगा मेरी बात बहुत गौर से।
Now the question is saying that a line PQ passes through the coordinates -1, -4 and 3, 8. ठीक है, ये है। फाइंड नहीं आएगा, सॉरी, डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम इवन होती है फाइंड आता, कैलकुलेट आएगा, कैलकुलेट द y-intercept of the line। अब ग्राफ नहीं है, अब ग्राफ नहीं है ना भाई। अब जब ग्राफ नहीं है तो अब क्या होगा, अब थोड़ा सा काम आपका चेंज होना शुरू हो गया। अब सुनिए बेटा, अब आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए होगी। इससे जनरली वी से दैट जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो क्या होती है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। हाँ जी, इसमें ये m क्या है और c क्या है। सबसे पहले लेबलिंग, m इज माय gradient, what was c, c was my y intercept, ठीक है ना भाई, वेट कर दी y एक्सिस, ठीक है। अच्छा जी, अब सुनिए मेरी बात बहुत गौर से। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, जो मुझे क्वेश्चन को देख के लग रहा है वो क्या लग रहा है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द c आई हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट फर्स्ट एंड x एंड y तो मेरे पास है, कोई भी कोऑर्डिनेट यूज कर लेंगे, या तो ये वाला या फिर ये वाला, है ना। बट व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, आई नीड टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट फर्स्ट। अब मुझे पता भी पॉजिटिव नेगेटिव कैसा ग्रेडियंट आने वाला है, तो लेट्स डू इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले मुझे c निकालने के लिए व्हाट आई रिक्वायर्ड, आई एम रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट। हाँ जी, डायरेक्ट करेंगे y2 माइनस y1, 8 माइनस -4, x2 माइनस x1, दो बार माइनस क्यों है समझ लीजिएगा इस बात को, 3 माइनस -1, एक बार नेगेटिव साइन फॉर्मूला का, एक बार नेगेटिव साइन दी हुई वैल्यू का। तो 8 + 4 = 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाता है और आई गॉट द ग्रेडियंट एज 3। ठीक है, मुझे लाइन मिल गया, लाइन पी क्यू का ग्रेडियंट तो आ गया भाई। ये पहला काम हो गया आपका। दूसरा काम, राइट द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इक्वेशन लिख लिया आपने, ठीक है। इक्वेशन में दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, लाजमी नहीं है, एनीवन यू वांट, भले ये वाला या भले ये वाला, ठीक है। तो लेट्स सपोज मुझे आसान लग रहा है 3,8 रखना है, मैं 3,8 रखता हूँ, x की जगह 3 और y की जगह 8 और ग्रेडियंट की जगह ग्रेडियंट की वैल्यू। तो व्हाट डिड आई अचीव, 3 to the 9, सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू -1। कैसे, ये -9 जाएगा ना यहाँ पर आकर, so I got -1 equals to c, मिल गया c। अब जो ने कहा था वो मुझे मिल गया y इंटरसेप्ट, समझ में आ गया y इंटरसेप्ट निकालने का तरीका, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब इसी के वो 2 पार्ट में जो मैंने कहा था b पार्ट है, अब इसमें b के पार्ट आपसे c पार्ट आ गया, और अभी क्या कह रहे हैं आपसे कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ। अब आप PQ लाइन की इक्वेशन भी निकाल लें, तो बेटा ऑलरेडी सब कुछ निकला हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्या कहा हमने, हमने कहा भाई जब भी किसी चीज की इक्वेशन निकालनी होती है, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ
M and C, gradient and y intercept. हमें ऑलरेडी दो चीजें पता है, कोई मुश्किल बात है ही नहीं. Gradient is 3 and C is -1. ठीक है, रीअरेंज कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. ये लीजिए आपकी इक्वेशन भी आ गई लाइन पी की ऊपर. ठीक है, ये आपके पास सारी चीजें हमने अभी तक की बेसिक वाली सब कंप्लीट कर ली हैं. तो इक्वेशन निकालने में आई डोंट थिंक किसी को कोई मुश्किल लगा होगा. आसान तरीन मेथड से आपको सिखाई इक्वेशन, आपको पता नहीं चला, आपने इक्वेशन निकालना सीख भी ली. कि पहले हमने ग्रेडियंट निकाल लिया, फिर सी निकाल लिया. सी निकालने के लिए एक्स और वाई की कोई भी एक कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे और काम बन जाएगा. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे हिसाब से ना आप लोगों का अभी तकरीबन 70% कंप्लीट हो गया है. ठीक है, तो 30% रह गया ना, वो थोड़ा सा हाई ऑर्डर है. हाई ऑर्डर में क्या है जरा सुन लीजिए. मैं 2-3 वोकैबुलरी वर्ड्स आपसे पूछूंगा अभी, जो ऑब्वियसली माइंड में पीछे कहीं होंगे, पढ़े होंगे पहले, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. वो क्या है? बाइसेक्टर. बाय मींस 2 और सेक्टर क्या होता है बेटा? पार्ट्स. ठीक है, बाइसेक्टर अलग है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग है, दोनों में फर्क है. ठीक है, और इसमें जो दो पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे. ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स. मैं यहाँ साइन ऑफ इक्वलिटी लगा रहा हूँ, तो 2 इक्वल पार्ट्स. सही हो गया मत? अच्छा, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आएगा आपके पास, वर्ड लिखा हुआ. जब क्वेश्चन में ये बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा हुआ आएगा, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यू नीड टू नो अबाउट द परपेंडिकुलर एज वेल. बाइसेक्टर का मतलब समझा दिया ना आपको. अब सिर्फ परपेंडिकुलर के जरा सा ध्यान दीजिएगा. आप सुनिए बेटा. बेटा जनरली परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? when two lines are at 90 degree to each other. Very good Manahil. But they will not be equal part. समझाते हैं आपको कैसे. ठीक है, एक जगह लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक जगह लिखा है परपेंडिकुलर. क्वेश्चन दोनों तरह आएगा. क्वेश्चन दोनों तरह आएगा. एक जगह आपके पास लिखा हुआ आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक जगह सिर्फ परपेंडिकुलर. मिटाइए इतना ताकि आपका दिमाग कंफ्यूजन ना हो. एक जगह लिखा आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक जगह सिर्फ परपेंडिकुलर. दोनों अलग अलग चीज है. ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें, कंफ्यूज ना होइएगा. इस वाले में आपके पास दोनों चीजें लिखी हुई आएंगी. तो बाइसेक्टर जो वर्ड है, 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब है आपको लाजमी लाजमी पॉइंट चाहिए. क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सुने जरा. अब ये ब्लू कलर की जो लाइन है रिकॉर्ड से देखिएगा. ये पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. ये मेरी लाइन कौन है? A to B. सही है. अगर मुझे कोई बोलेगा इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सो व्हाट वुड आई डू? ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये फॉर एग्जाम्पल लाइन हो गई CD, है ना भाई? ये परपेंडिकुलर हो गई. क्या ड्रॉ किया मैंने इसको? ये मैंने लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 ये इसका मिड पॉइंट है. तो बाइसेक्टर will always be drawn at the midpoint of the line. बाइसेक्टर हमेशा कहाँ ड्रॉ होगा? लाइन के मिड पॉइंट पे ड्रॉ होगा. अब कहने को दोनों परपेंडिकुलर है ना भाई. अगर मैं बात करूं कि लाइन मेरी ये वाली EF लाइन है, तो परपेंडिकुलर दोनों है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मेकिंग 90 डिग्री. लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा है? जो मिड पॉइंट पे ड्रॉ हुआ है. दिस पॉइंट इज सेड टू बी द मिड पॉइंट ऑफ माय लाइन. ठीक है, यस यू आर राइट बेटा. मनाली बेटा यू आर आल्सो राइट. तो इस केस में अब समझिए, इस केस में
अगर आपसे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैलकुलेट करना कहा जाएगा बेटे, सो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। क्यों? जब मिड पॉइंट ऑफ द लाइन आपको मिलेगा दैट इज एक्स कॉमा वाई एट दिस पॉइंट, तो वो ई एफ का भी तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और जब ई एफ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो सी निकालना आसान हो जाएगा, हम ग्रेडियंट। ठीक है, दूसरी बात वो बहुत इंपॉर्टेंट एक और ये कि ग्रेडियंट से क्या चेंज आएगा। अभी सुनिएगा मेरी बात बहुत गौर से। ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, क्या बोला मैंने? ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अब सुना है मेरी बात बहुत गौर से, मैंने कहा था ग्रेडियंट का सिंबल होता है। अब यहाँ दो लाइंस हैं, एक लाइन है ए बी और वो परपेंडिकुलर है, मैंने परपेंडिकुलर लिखा है शॉर्टकट में, किसके? सी डी के। फॉर एग्जाम्पल अभी हम दो लाइन ले रहे हैं खाली, ए बी और सी डी, ई एफ की बात अभी नहीं कर रहे। तो बेटा अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है ना, तो उनके ग्रेडियंट की इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, gradient of line 1 multiply by gradient of line 2 is equals to -1। ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है। अभी आते हैं सानी बेटा उस पर। ये इक्वेशन है मेरा बच्चा, ठीक है, और इसका मतलब आप ये इक्वेशन यूज करें या फिर आप डायरेक्ट ही उसका नेगेटिव इनवर्स निकाल दें। क्या बोला मैंने? अब ये बैठता हूँ, हाँ जी। तो बेटे हम या तो नेगेटिव इनवर्स कह लें या नेगेटिव रेसिप्रोकल, जो आपको आसान लगे, जो वर्ड आप यूज करना बेहतर समझें आप वो यूज कर लें। अब वो होता कैसा आपको सिखाया था वो भी। ठीक है भाई, अब कैसे? ये बातें सुनने में बड़ी अजीब सी लग रही है ना, हम प्रैक्टिकली करेंगे, इसको करेंगे हम भी सॉल्व करेंगे और फिर आपको बड़े अच्छा लगा कैसे आते हैं वो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो हमें उसका ग्रेडियंट कैसे मालूम करना है। अभी सुन, अलाइन ए बी एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके लिए। अलाइन ए बी passes through the coordinates -4, 5 and 2, -3। ठीक है, and it is perpendicular to the line y। ठीक है, calculate the equation of the line y। ये पेपर का सवाल है, सीधा क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक मुश्किल क्वेश्चन बन जाता है अगर आप इसको ठीक से नहीं समझते। तो आप जरा सवाल को गौर से दोबारा देखेंगे। लाइन ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले, और लाइन ए बी परपेंडिकुलर है लाइन वाई के। तो अगर जनरली अगर मैं इसको बनाऊं, फॉर एग्जांपल कुछ मेरी लाइन ए शायद ऐसी बन रही है, ए बी, ठीक है, ये कौन है? फॉर एग्जांपल मेरी लाइन ए और ये मेरा बी, और मेरे ए और बी कोऑर्डिनेट्स में लिखे कि मेरा -4, 5 यहाँ है और 2, -3 यहाँ है। ऑलमोस्ट इतना ही कुछ होगा, ठीक है, बट द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर। क्या है ये लाइन मेरी? परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन के? लाइन वाई के, मतलब एक लाइन वाई ड्रॉ हो रही है और वो इस लाइन के क्या है? ऐसे करके परपेंडिकुलर है। ये मेरी लाइन वाई, और आई नीड टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। कौन सी लाइन? वाई। अब आप गौर से देखो, वाई का मुझे कोई कोऑर्डिनेट नहीं पता, वाई का मुझे कोई कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो मैं ग्रेडियंट कहाँ से लाऊंगा, सी कहाँ से लाऊंगा? ऐसा ही है ना। अब देखें क्या होता है इसमें, ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है आपने। तो
सबसे पहले मैं ग्रेडियंट निकालूंगा किसका, ए बी का, ठीक है। सी वाई का कुछ भी नहीं है ना मेरे पास, मैं ए बी का ग्रेडियंट निकालूंगा और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करूंगा तो वो वाई का ग्रेडियंट बन जाएगा। कैसे, ये वाली इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन से, या तो ये करके या ये करके, ठीक है। जब परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट निकालना होता है तो या तो हम ये काम कर लेते हैं, या जो ग्रेडियंट आता है उसको हम नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेते हैं। सही होगी बात, तो करते हैं भाई, ये नेगेटिव इनवर्स कह लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो लेट्स डू इट। हमारे पास ए बी का ग्रेडियंट आ सकता है इजीली, कोऑर्डिनेट्स पता है, y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 5, x2 माइनस x1 2 माइनस माइनस 4 माइनस 8 अपॉन 6। So I got माइनस 4 अपॉन 3। ये किसका ग्रेडियंट आ गया बेटा मेरे पास, ए बी का, ठीक है। What I need to calculate the gradient of, now let's find the gradient of the line y। क्या करेंगे आप, नेगेटिव इनवर्स कर देंगे, नेगेटिव और इनवर्स। क्या निकालने के लिए, ग्रेडियंट ऑफ लाइन y का। क्या किया मैंने, गौर से देखा आप लोगों ने, नेगेटिव किया और इनवर्स कर दिया, मतलब फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया। 4/3 से 3/4 कर दिया, ठीक है। और नेगेटिव के लिए अपने पास से एक माइनस का साइन बाहर से भी लगा दिया। जब ये काम किया सो आई गॉट माई आंसर वेरी वेल। कैसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। लीजिए मेरा आंसर आ गया 3/4। कौन सी लाइन का ग्रेडियंट आ गया, लाइन y का ग्रेडियंट आ गया मेरे पास। सर सिंपली ये फॉर्मूला में पुट कर देते तो आपका आंसर 3/4 ही आ जाता। दोनों बातें एक ही है, मैं वो और करके बताने वाला हूँ हमजा। अगर आपको ये नेगेटिव इनवर्स करना मुश्किल लग रहा है बच्चों, तो आपने करना है, आपने कहना है gradient of 1 multiply by gradient of 2 is equals to -1। gradient of line 1 मतलब ए बी कितना आया था, -4/3। आपको gradient 2 मतलब लाइन y का नहीं पता था, ठीक है। 3 यहाँ डिवाइड मारा क्या होगा, मल्टीप्लाई, 3 1 3, माइनस का 3 आ गया, और -4 आ जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपको यूं कहने के लाइन 2 जो है मेरी y है वो माइनस से माइनस कैंसिल, 3/4 मिल गया। तो both the ways are absolutely correct. It's totally depend on you people which method you adapt and try to solve in any case। लेकिन गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया, आसान हो गया। जनरली आई प्रेफर कि टाइम बचेगा ये कर लेना, साइन भी चेंज फ्रैक्शन भी चेंज, दोनों उल्टा कर दो। अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। भाई किसी का ग्रेडियंट सिर्फ 2 आया तो क्या बन जाएगा, 1/2 और माइनस लगा देंगे। किसी का ग्रेडियंट -4 आया तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1/4। किसी का ग्रेडियंट -1/5 आया तो क्या बन जाएगा, 5। किसी का ग्रेडियंट पॉजिटिव है लेकिन 1/5 है तो क्या बन जाएगा, -5। ठीक हो गया, ओके। ग्रेडियंट तो मिल गया। तो इक्वेशन निकालने के लिए आई टोल्ड यू पीपल एक चाहिए होता है हमें ग्रेडियंट। आई टोल्ड यू पीपल इक्वेशन निकालने के लिए एक चाहिए होता है ग्रेडियंट और दूसरा वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या किया था हमने, कोई भी एक कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट किया था ग्रेडियंट के साथ ताकि हमें वाई इंटरसेप्ट मिल जाए। तो यहाँ हमें दो कोऑर्डिनेट्स पता है, ये भी और ये भी, है ना। लेकिन क्या कोई कोऑर्डिनेट y का है, कोई भी कोऑर्डिनेट y का नहीं है ना। तो इस कंडीशन में तो आपकी इक्वेशन कभी भी फाइंड आउट, मैंने खुद लिखा था पहले वो आपको समझाने के लिए ही, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ये ए का है, ये बी का है और ये ग्रीन वाली लाइन का है। क्या मेरे पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट ऐसा है जो y का हो, नहीं है ना। मेरे पास जब तक y का कोई एक भी कोऑर्डिनेट नहीं होगा मैं उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ही नहीं सकता, मैं उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ही नहीं सकता। दैट्स वाई अब मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मुझे y का कोऑर्डिनेट क्या है। तो सवाल को हमेशा बहुत गौर से पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ एक लाइन आपको ऐड कर रहा हूँ छोटी सी। सर y का मिड ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। नहीं नहीं, मिड पॉइंट अभी नहीं निकाल सकते जब तक बाइसेक्टर नहीं लिखा होगा, यही तो डिफरेंस, तभी तो मैंने पॉइंट लिखा ही था पहले। पासेस थ्रू
0,1 कहाँ से पास हो रही है 0,1 से। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो y की लाइन है ना भाई, ये कहीं यहाँ पे या यहाँ पे यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा x का 0 और y का 1 होगा, ऐसे किसी पॉइंट से पास हो रही है y का। अब मुझे मिल गया y का कोऑर्डिनेट। तो अगर बाइसेक्टर लिखा हुआ तो मिड पॉइंट लगाएंगे हम सब बेटा, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि बाइसेक्टर भी नहीं लिखा हुआ और एक कोऑर्डिनेट भी गिवन है, तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। ग्रेडियंट कितना आ गया मेरा l y की क्वेश्चन का 3/4। x और y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई बेटा, x और y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई बेटा 0,1, x का 0 और y का 1। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गॉट c इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मेरी इक्वेशन मिल गई y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 1, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये मेरी इक्वेशन आ गई किसकी, लाइन y की। मिड पॉइंट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बाइसेक्टर वर्ड नहीं लिखा हुआ। क्या नहीं लिखा हुआ, बाइसेक्टर वर्ड नहीं लिखा हुआ। बाइसेक्टर वर्ड लिखा होता तो कोऑर्डिनेट गिवन नहीं होता, बाइसेक्टर वर्ड लिखा होता तो कोऑर्डिनेट गिवन नहीं होता। कैसे, आपको दिखाते हैं अभी, दोनों डिफरेंस कैसे समझ में आएंगे आपको। लाइन ए बी इज अ perpendicular bisector to the line PQ, where P is equal to 2,5 and Q is equals to -4,8। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या निकालें आप, इक्वेशन निकालें। वो ये बोल रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है, ए बी है। वो चाहते तो लिखते हैं कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, दोनों वाला ठीक है, दोनों काम चलेगा, दोनों में सही है बिल्कुल, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन करते हैं। अब आपको पता चल गया कि पहले मुझे लाइन क्या करना है, पी क्यू का ग्रेडियंट निकालना है, और फिर उसको क्या करेंगे इन्वर्स करेंगे ताकि ए बी का ग्रेडियंट बन जाए। तो डायरेक्ट करते हैं 8 - 5, 8 - 5 में फिर भी चलो स्टेप बनाया जाता है। y2 - y1 कर लिया अपॉन x2 - x1। तो 8 - 5 इज 3/-6। तो ये आ गया मेरे पास -1/2। ये किसका ग्रेडियंट आ गया मेरे पास, पी क्यू का आ गया। अगर पी क्यू का ग्रेडियंट इतना है बेटा, अगर पी क्यू का ग्रेडियंट इतना है तो ए बी का ग्रेडियंट क्या बन जाएगा, इसका इनवर्स, मतलब नेगेटिव इनवर्स। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस और 2 आ गया ऊपर, 2/1 2 ही लिखेंगे, ये आ गया, ठीक है। अब वहां लिख रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, because they are saying perpendicular bisector, so I will calculate the midpoint of PQ। ऐसा क्यों भी समझाते हैं आपको, देखें फॉर एग्जांपल ए बी की लाइन भाई ये जा रही है ब्लू वाली, ये ए और ये बी, और बाइसेक्टर कौन है, जो बिल्कुल सेंटर से इस लाइन को दो हिस्सों में बराबर का कट कर रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको सेंटर में करता हूँ कुछ ऐसे करके। ये कौन है, ये मेरा सेकंड, ये मेरा पी क्यू था गिवन, ये मेरा पी क्यू, और बाइसेक्टर कौन है ए बी, जो बिल्कुल मिड पॉइंट से कट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस लाइन की लेंथ अगर 20 है, पूरे का 20 है, तो 10 यूनिट्स यहाँ और 10 यूनिट्स यहाँ, इस तरह से इसे कहते हैं बाइसेक्टर। तो बेटा कैन आई से दैट दिस मिड पॉइंट will be here of the PQ, and this midpoint will also be a coordinate of the line AB. This midpoint is also a coordinate of the line AB. That is why we are calculating the midpoint. So midpoint क्या था, x1 plus x2 upon 2, x1 plus x2 plus minus minus upon 2, y1 plus y2 upon 2। लो भाई कोऑर्डिनेट भी आ गया, -2/2 मतलब माइनस का 1, 8 + 5 13/2 मतलब 6.5 लिखते हैं। ये मिड पॉइंट हम निकाल लिया किसका, पी क्यू का।
भाई जब पी क्यू का मिड पॉइंट आया, ये एक्स वाई है किसका, ए बी का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो जब बाइसेक्टर वर्ड लिखा होगा देन यू हैव टू अप्लाई द मिड पॉइंट। और आप इक्वेशन निकालने के लिए सी के लिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास आप सी निकालने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कौन यूज होगा, मिड पॉइंट यूज होगा। सो y इज 6.5, gradient is 2, x is -1, माइनस का 2 विल गो लेफ्ट हैंड साइड, प्लस का 2 हो जाएगा। c आ गया मेरे पास 8.5। और बस जब m और c मालूम हो गया तो क्या रह गया क्वेश्चन में, कुछ रह गया मुश्किल? सो यू आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन y is equals to mx plus c। तो y is equals to 2x plus 2 था ना भाई ग्रेडियंट, हाँ जी 2, और c is 8.5। ये किसकी इक्वेशन आ गई आपके पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था कौन, ए बी था। इक्वेशन ऑफ द ए बी। यहां तक क्या काम किसको समझ में नहीं आया? यस प्लीज, जल्दी से आ दीजिए, यहां तक क्या चीज किस बच्चे को समझ में नहीं आई? ऑल क्लियर? Today we are going to practice the questions in the past papers that we have covered. The topic was taught to you, to all of you people, and the name of the topic was coordinate geometry. हमने उसके parallel, perpendicular सारे concepts पढ़े थे, और अब हम उस क्वेश्चन को उसी हिसाब से करने वाले हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे आप लोग भी। ठीक है, जब जब मैं पास्ट पेपर सॉल्व करता हूँ आपने कॉपी लेके पेन लेके साथ बैठ जाना है। ठीक है, नहीं बेटा वो सिलेबस में नहीं है मेरे बच्चा, वो सिलेबस में नहीं है, साइज आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, वो लेवल्स में आईजी में कहीं पर भी नहीं है, ना एक्सेल में कहीं पर भी नहीं होता बेटा। तो ए इज द पॉइंट 3,11, बी इज द पॉइंट -5, -5। बिल्कुल ठीक है। ये दो पॉइंट्स है भैया आपके पास, कौन, ए और बी। कुछ इस तरह से बन रहे होंगे। लेट्स सपोज ए आ गया आपका यहाँ पर, व्हिच इज 3,11, एंड द बी आ गया कुछ यहाँ पर, और ऑलमोस्ट होगा भी कुछ ऐसा ही, -5, -5। अगर हम ऐसे अपना एक्सेस ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई ये मेरा x एक्सिस है, तो कुछ ऐसा आएगा कि ये b -5, ठीक है। अच्छा, the equation of the line L is 2y plus x is equals to 5। show that the line L is perpendicular to AB। एक लाइन है, प्रूफ करें कि वो लाइन जो है ना ऐसा परपेंडिकुलर, लाइन L उसको ऐसे क्रॉस कर रही है, और वहां सी की वैल्यू क्या शो हो रही है, 5/2। मैंने सी की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाली, मैंने सी की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाली आपको शो करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनिए बेटा, सबसे पहले इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, नहीं बेटा लोकस रूल हम यहाँ नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, वो सिर्फ एड मैथ्स में होता है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो हम बेटे क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली इसमें बड़ा ही आसान काम करेंगे। क्या काम है हमारा आसान, हम सिर्फ ए और बी का ग्रेडियंट निकालेंगे। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, hence so their gradient must be negative reciprocal to each other। ठीक है, तो हमने कहा भाई पहले हम ग्रेडियंट निकालते हैं किसका, ए बी का। इंतहाई आसान काम, ए बी का ग्रेडियंट। तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। कितना ग्रेडियंट आ गया बेटा, -16 ओवर -8। माइनस से माइनस कैंसिल, ग्रेडियंट आ गया 2। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही गया है। ठीक है, अच्छा अब लाइन एल क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन एल वो क्या मिली है मुझे, 2y प्लस x इज इक्वल टू 5। जब भी ऐसी इक्वेशन लिखते हैं ना, इसको जनरल कंडीशन में लेके आते हैं। जनरल कंडीशन क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब y मस्ट बी अ सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो y इज इक्वल टू हमेशा पहले x वाली वैल्यू तो माइनस का x हो गया वहां जाकर, और अभी पहले 2 यहाँ लिख लें, और 5 हो गया बेटा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड, और हम चाहें तो उसका एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं, मतलब मैं इसको -1/2x प्लस 5/2। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया तो उसको यूं भी लिख सकते हैं। एक मिनट रुकिए, आपको यूं वहां तरीका बताया था, -x प्लस 5/2 है ना। जब भी ग्रेडियंट और सी की वैल्यू निकालनी होती है तो एलसीएम ब्रेक करते हैं, मतलब फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट कर लेंगे। तो x के पास कुछ नहीं तो 1 है, अपॉन में 2 साथ साथ आ गया, फिर 5 के पास अपॉन में 2 आ गया। अब जरा इसको और इसको कंपेयर कर लें बेटा, यू कैन इजीली सी ग्रेडियंट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आ रहा है माइनस का 1/2।
तो द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L is -1/2. तो कैन यू सी यहाँ ग्रेडियंट क्या था? इट वॉज, यहाँ ग्रेडियंट क्या था? इट वॉज 2, है ना भाई? यहाँ ग्रेडियंट क्या था? इट वॉज 2, और मेरे पास यहाँ ग्रेडियंट क्या है? -1/2. प्रूफ हो गया, है ना? तो आपके लिखेंगे hence shown 2 और परपेंडिकुलर में कैसे? -1/2 हो गया। ओके हो गया? यहाँ तक कोई मुश्किल काम? मिड पॉइंट पता कब निकालते हैं? जब बाइसेक्टर लिखा होता है, उसके अलावा कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो कैलकुलेट ही बाय मिड पॉइंट करना हो, 1 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे नहीं है। बाइसेक्टर कब आएगा? जब हम बाइसेक्टर लिखा हुआ आएगा, सो वी हैव टू अप्लाई द मिड पॉइंट। अभी आएगी ना वो साइड से क्लियर होंगी, अभी तो पहले ही क्वेश्चन है ना, अभी बहुत चीजें आएंगी मेरे बच्चे, फिर आपको समझ में आएगा सब कुछ। आप देखो क्या कह रहे हैं अभी इस वाले क्वेश्चन में ना, आपकी जो कंफ्यूजन है बाइसेक्टर वाली, वो यहाँ क्लियर होगी बेटा। A is the point, this and this, B is the point, this and this. Find the coordinates of midpoint of AB. डायरेक्ट बताएंगे। कौन बताएगा डायरेक्ट? जल्दी से, जल्दी से, शाबाश। मैं कह रहा हूँ 1,5 आएगा। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? चेक दैट, चेक दैट, शाबाश। कौन निकालेगा गलती? लेट्स सी के सही बताया मैंने, नहीं आया, कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो 1,5 आ रहा है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन कैलकुलेट दैट इंडिविजुअली। जल्दी से, ऐसा लगाएंगे स्पीड, सेकंड में कंप्लीट करना है हमने, क्योंकि 1 नंबर का तो है, क्या टाइम वेस्ट करना हमने इसका। हाँ, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अभी आएगा यहाँ बाइसेक्टर का लिखा, तो हम देख लेंगे बाइसेक्टर तो मिड से कट करेगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमने खाली ग्रेडियंट के थ्रू प्रूव कर दिया कि वो परपेंडिकुलर है उसके। ठीक है मनाहिल? हाँ मनाहिल, सॉरी बेटा, मनाहिल बेटा का बाइसेक्टर लिखा है, तो हम लाइन को बीच सेंटर में ड्रॉ कर लेंगे। कहाँ पर? सेंटर में, मतलब समझाया तो आपको। फिर ए पॉइंट को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, 1 सेकंड रुकिए। ये ए पॉइंट थोड़ा ऊपर या नीचे कहीं ले जाते हैं, और इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, ताकि मेरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाए ये पॉइंट। ठीक है, ताकि ये पॉइंट मेरा क्या लगे? मिड पॉइंट ऑफ द लाइन लगे। सही है भाई? अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये मेरा ए पॉइंट और ये बीच का सेंटर पॉइंट आ गया बाइसेक्टर एक्सिस। ओके हो गया? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,5 भी आ गया। इजी पार्ट है ना ये? तो बिल्कुल इजी पार्ट है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या आ रहा है? कह रहे हैं लाइन एल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स। पहली बात तो ये आपके पास ना ये वाली टर्म अब नहीं आएगी, लोकस वाली बात अब नहीं आएगी। ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन होगा। हाँ, ये जून 2023 का क्वेश्चन है, तो इसलिए उसके बाद से 2024 के बाद से चीजें नहीं आती। तो आपके पास क्या आएगा? लाइन एल इज अ पॉइंट, लाइन एल इज, मैं इसको ठीक कहता हूँ कि जैसा इसको आना चाहिए ना आपके पास, वैसा आएगा। लाइन एल is the point that is equidistant from A and B. That is equidistant from A and B. क्या है? A and B से क्या है? Equidistant है। That is equidistant from A and B. So line L is the point that is equidistant from A and B. अब गौर से सोचो, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, बल्कि और आसान लेता है। ये मेरा A और ये मेरा B, है ना भाई? इक्वेशन क्या होगा? कहाँ चाहिए L को? Obviously they are talking about L being a मिड पॉइंट, दैट्स इट। तो क्योंकि ये वाला पार्ट अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर आएगा भी तो उसके मिड पॉइंट ड्रॉ करने के हद तक आएगा, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ ड्रॉ करने के हद तक आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। हाँ सानी, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला लगाया मैंने, कोई ट्रिक शिक नहीं है बेटा। चलो ट्रिक मान लो, क्या था मिड पॉइंट का फॉर्मूला? x1 + x2 अपॉन 2 करो, 4 और -2 कितना बचा? 2, 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 1। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पेशलिस्ट हो जाओगे। सही है, हो गया आसानी, एकदम से आपका आंसर आ जाएगा मेरा बच्चा। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ जाएंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ 2 मिनट्स वेट करूंगा, एंड आई थिंक कि 2 मिनट्स में आप इसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे।
ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कैसा पढ़ाया है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2:49 पे आपसे बात बेटा। अच्छा, ईमान गौर से देखो, x1 और x2 आपने सही रखा है फॉर्मूला में। मिड पॉइंट के लिए कह रहा हूँ बेटे। चले भाई, अब मैं करता हूँ। अब मेरे पास से वेरीफाई कर लें भाई। फॉर्मूला था x1 प्लस x2, मतलब ऐसा, अपॉन टू y1 प्लस y2, मतलब ऐसा। ठीक है, तो ये क्या रह गया, 6 माइनस 2 इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2, 13 प्लस 14, 14 अपॉन 2 इज 7, 2,7। भाई सबका ही आ रहा है, ठीक है। और ग्रेडियंट आ गया पी क्यू का y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 कहाँ है भाई, y2 13, y1 इज 1, x2 माइनस x1 6, माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना आ गया 12 अपॉन 8। तो ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा ना, और फिर -2 अपॉन 3, ऐसे होगा। अब सही है, अब सही है। मैं जल्दी जल्दी में ना कोई बेवकूफी की थी, ठीक है। थैंक यू ताहिर भाई, बिल्कुल ठीक है आपके आंसर, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। कोई मैंने बेवकूफी की थी बेटा, सो सॉरी। अच्छा, टेंजेंट पे आते हैं। तो बेटा टेंजेंट और सेंटर ना हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। सही है, ये बात याद रहेगी। द टेंजेंट टू सेंटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अच्छा, ये सी से पी तक कौन है, ये रेडियस होता है बेसिकली, है ना भाई। सेंटर टू द बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस। अब ये मुझे मालूम हो गया। इन अ डायग्राम शोज अ सर्कल विद अ सेंटर O, 1, P is the point 3, 5, find the equation of the tangent at P। क्या मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट P, मतलब मुझे इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो टेंजेंट इक्वेशन लाइन है मेरी, ठीक है। तो उसका कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, लेकिन हाँ एक कोऑर्डिनेट गिवन है। सो एक कोऑर्डिनेट गिवन है, उसको सॉल्व करेंगे। मीटिंग चैट में लिखने से बेहतर है कि ना अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, साथ साथ। चलिए भाई, तो पहले क्या करेंगे, इक्वेशन निकालने के लिए। अब मुझे पता है कि P इसके टेंजेंट में है, तो मैं आराम से क्या करूंगा, आई विल कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ C टू P। वहां के ग्रेडियंट को इनवर्स कर लेंगे भाई, है ना। तो मैंने निकाला ग्रेडियंट ऑफ C टू P। C टू P ग्रेडियंट के लिए क्या करेंगे, y2 माइनस y1 मतलब 4, x2 माइनस x1 मतलब 3। ये किसका आ गया, PC का ग्रेडियंट आ गया। तो इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए मुझे ग्रेडियंट उल्टा करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट परपेंडिकुलर टू पीसी कितना बन जाएगा, मतलब टेंजेंट का -3/4। क्या आप सबका ये आंसर आ रहा है, क्योंकि मुझसे लास्ट वाले क्वेश्चन में छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, पता यस। नहीं क्यों। वेरी गुड। ग्रेडियंट के बाद क्या चाहिए मुझे, सी चाहिए। सी निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज माय इक्वेशन। माय कोऑर्डिनेट फॉर द पी इज 3,5, gradient is -3/4, my x is 3, I can easily figure out the C. How? माइनस का 9/4 है, will be shifted to left hand side, तो पॉजिटिव 9/4 हो गया। We always keep the denominator same, so we are going to multiply 4 in the numerator and with the denominator. 20 plus 9, 29/4. So C I got is 29/4. So here's my equation to the tangent of the tangent. So y is equals to -3/4x plus 29/4। हाँ जी सर, पी का कोऑर्डिनेट से सी, हाँ बिल्कुल सही फरमाया, सेम आंसर, वेरी गुड। चलो भाई, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपके सामने। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इफ यू गाइस आर डूइंग इट गुड, सो इट्स आउटस्टैंडिंग। सबके आंसर्स मैच हुए हैं। चलो वेरी गुड ईमान बेटा, रियली गुड टू सी दैट, माशाल्लाह, सो प्राउड ऑफ यू बच्चा। चलो भाई, ये क्वेश्चन कौन करेगा, क्वेश्चन नंबर 16। आई एम गोइंग टू वेट ओनली 2 मिनट्स फॉर दैट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2:57 पे बात करेंगे आपसे, जल्दी से, शाबाश, रेस रेस।
यस वेरी गुड, आप सबके आंसर बिल्कुल ठीक है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, y प्लस 7 प्लस तो नहीं होगा, प्लस होगा? आई डोंट थिंक सो, इट शुड बी अ माइनस, नेगेटिव होगा ना? ठीक है, चेक कर लें प्लीज, माइनस होगा। आप बताएं भाई, इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल लग रहा है? इसके बाद हमने पेपर 2 के क्वेश्चन पे जाना है, इसमें चेक कीजिए आप जल्दी से। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन, इसको रिव्यू कर लें, एक बार पढ़ लें। हाँ इट्स नेगेटिव ना, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्लियर है, वेरी गुड। क्वेश्चन 15 क्लियर हो गया, सही है। सो वी आर मूविंग टू द पेपर 2, पेपर 2 पे जा रहे हैं। और आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह, ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल भी मसला नहीं आएगा। अच्छा, कोई और लॉजिकल चीज ऐसी इसमें अगर हो तो हाँ, चलो पेपर 2 में आ ही जाएगी ये चीज, सही है। सो वी आर मूविंग टू पेपर 2 टॉपिकल पेपर क्वेश्चंस, एंड दिस इज ऑल अबाउट अगेन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कुछ नहीं आता तो यहाँ भी आप हमसे पूछ लेंगे, आज पेपर 2 के क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड करूंगा मैं, ठीक है। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर 2। P is the point r comma 4 and Q is the point t comma u. The midpoint of line is 1 comma 3. The gradient of line is minus 1 upon 4. Find the value of r, t and u. Again, remark one question. P, Q given है, midpoint given है. Remember that if a value is given to you and if you can use the formula of that value, exactly you are going to apply that formula. जैसे midpoint का और gradient का formula use करेंगे तो काफी help मिल जाएगी, सही है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, midpoint किसका, PQ का। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो r प्लस t अपॉन 2, 4 प्लस u अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट कितना बेटा, 1,3, सही है। r प्लस t अपॉन 2, 4 प्लस u अपॉन 2। अब तवज्जो बेटा, x वाली वैल्यू x के बराबर और y वाली वैल्यू y के बराबर, you are going to equate the positive x to x and y to y, means 1 is equals to r plus t upon 2, comma 3 is equals to 4 plus u upon 2। ये दो एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस मेरे पास आ गए, ठीक है। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 2 is equals to r plus t, ये बन गई क्वेश्चन एक। और यहाँ आ गया 3 to the 6, 3 to the 6 minus 4 is equals to u, so I got the value of u is equals to 2। तो भाई u तो मिल गया, I got q as 2। The next is what, gradient भी given है 1/4। तो ग्रेडियंट वाला पार्ट भी सॉल्व करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेडियंट वाले पार्ट के लिए 1/4 किसके इक्वल होगा, पी क्यू के ग्रेडियंट के। तो सॉरी, नेगेटिव 1/4, नेगेटिव 1/4 is equals to p q gradient y2 minus y1, means u minus 4 x2 minus x1 means t minus r। हमें u की वैल्यू ऑलरेडी पता है ना, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u हियर, ठीक है। हम u की वैल्यू रख देंगे, तो वो क्या है 2, 2 minus 4 upon t minus r, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गॉट -1/4 is equals to -2 upon t minus r, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल भी करना चाहें तो, और 4 2 जार 8, तो 4 2 जार 8 इज इक्वल टू टी माइनस आर, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा टी माइनस आर। अब ये टी प्लस आर, टी माइनस आर, दो वैल्यूज आ गई, क्या कर सकते हैं, कभी सोचा है कुछ क्या कर सकते हैं, टी प्लस आर, टी माइनस आर, टी प्लस आर, टी माइनस आर, कुछ कर सकते हैं। हाँ भाई, यहाँ से किसी एक को सब्जेक्ट बना के वहां रख देंगे, साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस प्रेशर अगर नहीं आता है किसी को तो अलग बात है, जिसको आता है समझना है, वैसे 5-6 क्लास में सब पढ़ लेते हैं, इसको आसान सा है। चलें भाई, क्या कर रहे हैं हम ये वाली क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से टी को या आर को सब्जेक्ट बना लेंगे, टी को बना लेते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस आर इज इक्वल्स टू टी, सब्जेक्ट बन गया टी। और हम कहाँ रखेंगे इसको, इक्वेशन 2 में रखेंगे, इसको मैं 2 का नाम दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी इक्वेशन 1 थी, ठीक है। तो 8 इज इक्वल्स टू टी माइनस आर, 8 इज इक्वल्स टू टी की जगह क्या आएगा, 2 माइनस आर माइनस आर
8 minus 2 is equals to minus 2r, और 6 is equals to r divided by minus 2, तो r is equals to minus 3 आ गया है ना भाई। 3 1 2 2 2 3 6, 2 3 6, लीजिए r भी मिल गया। ठीक है, आई गॉट r, हमने सब्जेक्ट बनाया और सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब r मिल गया है ना, अब इसको r की वैल्यू को 2 में रख लेते हैं। क्या रखेंगे? 2 में रख लें, ये वाली इसको 3 का नाम देके इसमें रख लें, कहीं भी रख सकते हैं, इससे आंसर आएगा। 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, आपकी मर्जी। ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग, हम 1 में रख रहे हैं, तो 1 क्या थी मेरी, 2 इज इक्वल टू r प्लस t, ऐसा ही है ना। तो r कितना आया बेटा, -3, -3 will go on left hand side, become positive, तो 5 हो जाएगा, तो 5 is equals to t। So we got the values of all three, में कौन कौन है, t, r, और कहाँ गया u और u। तो we got r is -3, और r is -3, और क्या था हमारे पास, एक मिनट सॉरी, हाँ जी, r is -3 और t is 5 and u is 2। ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का है, साइमल्टेनियस की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट ज्यादा है, लेंथी ज्यादा है, नॉट डिफिकल्ट। आगे इसमें कुछ मुश्किल लगेगी बेटा, इसकी डबल स्पेस आएगी, ये तो पास्ट पेपर स्क्वीज डाउन हुए होते हैं ना, ताकि कम पेजेस पे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जगह जो होगी ना वो इतनी होगी कि आप आराम से क्वेश्चन करके वहां लेट जाओ, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, स्पेस बहुत होती है, डोंट वरी फॉर दैट। हाँ हाँ भाई, अरीजा बेटा क्या समझ में नहीं आया पूछो। ईमान, मनाहिल, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, और मोहमन अगर प्रॉब्लम है, ताहिर बेटा, सब बच्चे को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई बच्चों को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो बेटा। नहीं नहीं, बहुत जगह होती है, और लास्ट में 3 पेज खाली भी होता है, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, 2 कॉलम आना मेरी तरह, जगह का प्रॉब्लम नहीं होता। जितना पता है, इस पूरे क्वेश्चन के लिए ना आपको पूरा पेज मिलेगा, तो पूरा पेज इज क्वाइट इनफ, आप 2 कॉलम बनाएंगे, आराम सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आर वाला समझ में नहीं आया, अच्छा देखो कुछ भी नहीं किया सानी बेटे, लिसन टू मी, व्हाट डिड आई डू। बेटे हमने क्या किया, हम यहाँ फंस गए थे ना, ये क्वेश्चन में फंस गए थे, है ना। तो व्हाट डिड आई डू, मैंने यहाँ से ना 1 वाले से टी को सब्जेक्ट बना लिया, किसको सब्जेक्ट बना लिया, टी को, ताकि आर की वैल्यू पुट करना है, तो आर वहां जाके हो गया माइनस का, हो गया, टी की वैल्यू मिल गई ना, टी की वैल्यू को उठाया और मैंने कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया टी की वैल्यू को, देखो 8 वाली इक्वेशन में रख दिया, कहाँ 8 वाली, ये रही, सही है। क्या वैल्यू थी आर की, टी की 2 माइनस आर, तो टी की जगह आ गया 2 माइनस आर, सही है। कितने आर हो गए अब, 2 नेगेटिव आर होगा, प्लस का 2 आना कर -2 हो गया, वी गॉट 6, और फिर -2 डिवाइड में लेके आ गया, क्योंकि नेगेटिव साइन हम कभी वेरिएबल के साथ नहीं छोड़ते ना, वी ऑलवेज राइट विद द न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 2 1 2, 2 3 6, सो वी गॉट -3। ओके हो गया, ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड ईमान, एक्सीलेंट बेटा, चलो बेटा फरिया, वेरी गुड। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, पेपर 2 मतलब ये कैलकुलेटर वेरिएंट वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पेपर 2 या पेपर 4 जो आप कह लें। ठीक है, अच्छा जी, शुरू हो जाइए, ये काम में कोई मुश्किल है, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम, जल्दी से देख लें। बाइसेक्टर लिखा है, क्या करेंगे, बाइसेक्टर मींस क्या करेंगे, व्हाट यू नीड टू फिगर आउट फॉर द एक्स एंड वाई, फॉर द एक्स एंड वाई आई नीड टू कैलकुलेट मिड पॉइंट। ठीक है, और ग्रेडियंट के रेसिप्रोकल करेंगे, और परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए करते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल, है ना, ये ग्रेडियंट के लिए है। और बाइसेक्टर के लिए क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, किसका, पी क्यू का, और उसकी जगह रख देंगे। ओके हो गया, चलो ग्रेट, आता है ना काम, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम। ठीक है, हम इसके लिए अपना टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहते, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे सारे जो मुश्किल लग सकते हैं, चला भाई, ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपके पास नहीं आया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये कौन सा आ गया, वेरी गुड मनाइल बेटे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 says that D is the point 4,6 and E is the point E, E. The length of the D is under root 20. The length of the DE is under root 20. यही की पॉइंट है, यही आपकी वो नॉलेज है that you need to attain. Length of the line आपको गिवन है, क्या गिवन है, length of the line. Do we have any formula to apply for the length of the line? Of course, yes. So we're gonna do that.
डी ई इज इक्वल्स टू, डी ई के लेंथ निकालने क्या करेंगे हम, ऐसे करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने खुद लिखा है ताकि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए। अंडर रूट 20 वैल्यू गिवन है किसकी, डीई की, लगाते हैं डीई पे, x2 माइनस x1 e माइनस 4 y2 माइनस y1 e माइनस 6, रूट से रूट कैंसिल, 20 इज इक्वल टू, तवज्जो दीजिएगा, ये क्या बन गया, ये बन गया ये वाली चीज, a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन हो रही है हमारी, ठीक है। अगर यहाँ ब्रैकेट में माइनस होगा तो 2 वाली टर्म भी नेगेटिव होगी, अभी नेगेटिव वाली है तो नेगेटिव वाला लगाएंगे, ठीक है। सो लेट्स डू इट, a स्क्वायर मतलब e स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, 2a और b की जगह कौन है 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का क्या हो गया स्क्वायर प्लस, फिर दोबारा वही फॉर्मूला, e स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह e, b की जगह 6 प्लस बी स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर। ओके हो गया, ठीक है। अच्छा भाई सिंप्लीफाई करते हैं, एक ए स्क्वायर दूसरा ई स्क्वायर दोनों प्लस के हैं तो 2e स्क्वायर, सही है। 2 4 8e, 2 6 12e, है ना, दोनों नेगेटिव है, 8e एंड 12e, तो 8e एंड 12e, 8e और 12e कितने हो गए बेटा 20e, नेगेटिव के 20e, फिर 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 16 प्लस 36, क्या कहा 16 प्लस 36, रीअरेंज कर लें, यहाँ रह गया 0 और 2 को 20 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं और ये कितने हो गए 16 प्लस 36 प्लस सॉरी माइनस माइनस 20 भाई राइट साइड पे आ गया नेगेटिव हो गया, सो वी गॉट द इक्वेशन फाइनली स्क्वायर माइनस 20e और ये कितने बच गए 20, 36 प्लस 16 कितने हो गए 52, 52 माइनस 20 माइनस के प्लस के 32, भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सही है बिल्कुल ठीक है 32 हो गया। कुछ कॉमन शरीफ आ रहा है, कुछ कॉमन शरीफ आ रहा है ना, क्या है कॉमन 2 कॉमन है ना हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा बस, हम एक्चुअली आई नीड मोर स्पेस, सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट ऑल ऑफ दीस वैल्यूज टू लेफ्ट मोस्ट साइड, ठीक है। अच्छा जी, ताकि हम यहाँ लाइन ड्रॉ करके अपना बाकी का सोल्यूशन जल्दी करना, पेपर में आपके पास इसकी 4 टाइम्स जगह होती है जितनी यहाँ पे, तो इस तरह से परेशान मत होना कि जगह होगी या नहीं होगी, जगह बहुत होगी, आराम से लेट जाओगे पेपर पे, इतनी जगह होगी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं मजीद आगे, तो 2 कॉमन आने के बाद क्या हुआ बेटा कि मैं यहाँ 0 पे भी डिवाइड बाय 2 करूँ और इसमें भी सब जगह डिवाइड बाय 2 करूँ, मतलब 2 कॉमन ले लें फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.2 0, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ e स्क्वायर 20/2 मतलब माइनस का 10 e, माइनस का 10 e और 32/2 इज 16, सही है। जब ऐसी कंडीशन आती है ना तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, क्या तरीके होते हैं 2 तरीके, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए और दूसरा कैलकुलेटर से आंसर वेरीफाई कर लीजिए या मिडिल टर्म ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। अब 8 2 16 इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, कैसे किया मैंने 16 का एलसीएम ले लिया, ये हम काम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा, 2 8 2 4 2 2 2 1 इन फैक्टर्स को इस तरह अरेंज करें कि क्या बन जाए मिडिल वैल्यू बन जाए, सही है भाई। तो 8 एंड 2, 2 2 4 4 2 8, माइनस का 8 और माइनस का ही 2, ये वाला फैक्टर भी आ गया, और ये ठीक है, तो माइनस के टर्म बनते हैं, ई स्क्वायर माइनस का 8e माइनस का 2e प्लस का 16, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले 2 वैल्यू से क्या कमा आ रहा है ई कमा आ रहा है, क्या बच गया e माइनस 8, दूसरे ब्रैकेट से कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो बचा e माइनस 8, ठीक है। तो इसके मेथड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम आएंगे, ठीक है, सेम आ रहे हैं, कॉमन निकाल लिया, क्या ब्रैकेट के बाहर क्या रह गया e और माइनस का 2, ठीक है, दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करेंगे, तो इक्वल टू का 0 करेंगे तो माइनस का 8 लेफ्ट हैंड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 2 लेफ्ट हैंड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो e कॉमा ए ई इज इक्वल टू 8 कॉमा 2, ठीक है, तो 8 कॉमा 2 या 2 कॉमा 8,
क्या बोला मैंने? तो दोनों ई है ना, दोनों ई है, सॉरी दोनों ई हैं, तो 8,8 क्या होगा? 8,8 या फिर 2,2, दोनों सेम सेम वैल्यूज होंगी। समझ गए? 5 मार्क्स का क्वेश्चन। नहीं 8,2 लगना नहीं, दोनों ई हैं दोनों ई हैं, मतलब दोनों सेम वैल्यू एक साथ, फिर दोनों सेम वैल्यू एक साथ। समझ गए? ठीक है, तो 8 8 2 2 7 7। ओके हो गया, लॉजिकल क्लियर हो गया? समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? इफ यू स्टिल कंफ्यूज सो प्लीज राइट इट टू मी। बेटा कोऑर्डिनेट पढ़ो ऊपर हमजा, क्या कह रहे हैं? ई कॉमा ई, मतलब दोनों वैल्यू सेम चाहिए कोऑर्डिनेट में। तो पहली गॉड में दोनों कोऑर्डिनेट्स के पहले वाले 8 8, फिर दूसरी सेम ऐसी 2 2। समझ गए बेटा? हाँ ठीक है ई मतलब दोनों सेम वैल्यूज। उन्होंने E1 E2 थोड़ी कहा, E1 E2 कहते तो हम 8,2 और 8,2 या 2,8 ले रहे होते। सही है, समझ के बात को? अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो डीएफ का है ना, वो कितना है? 3/2 है, ग्रेडियंट उसका। द ब्रेक, यस 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 यस, दो है ना एक ही, तो दोनों जो सेम है वो पहले एक साथ, फिर दो सेम एक साथ। ठीक है, यही अवेयरनेस चीज क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं एंड में आके, बिल्कुल वो 8,2 या 2,8 लिख देते हैं, वहां फंस गए। ठीक है आते हैं मजीद आगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह रहे हैं ग्रेडियंट मिला हुआ आपको, कितना मिला हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का? -3/2, नहीं 3/2 सॉरी, नेगेटिव नहीं, 3/2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, और एफ पॉइंट से गुजर रहा है, डी हमें ऑलरेडी पता है। तो लेट सपोज डी मेरा है 4,6, डी यहाँ कहीं कर दिया, और एफ कितना है? एक नेगेटिव वैल्यू है, एक 5 है, पॉजिटिव। ठीक है, तो लेट सपोज एफ मेरा यहाँ कहीं है, ये आ गया -f,5f, और ये आ गया 3,2 के लिए, मतलब डी का मेरा कोऑर्डिनेट आ गया कितना? 4,6। ठीक है, और इसका कौन है? ग्रेडियंट इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसके मिड पॉइंट से कट कर रहा है, ऐसे मिड पॉइंट से, उसका ग्रेडियंट है 3/2। तो अगर उसका ग्रेडियंट 3/2 है तो एफ डी क्या होगा? -2/3 होगा। ठीक है, एफ से डी वाई लाइन का क्या होगा? -2/3 होगा। ये बात तो कंफर्म हो गई, -2/3 वाली बात। ठीक है, अब ये एफ कैसे निकालें? बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मुझे ग्रेडियंट मालूम हो गया डी एफ का -2/3, तो फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1, 6 माइनस 5f, x2 माइनस x1, 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस कैसे हो गया? एक माइनस का फॉर्मूला, एक फॉर्मूले का माइनस, और एक जो है उसका माइनस, क्या कहते हैं, वैल्यू का, इसलिए प्लस हो गया। भाई क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 विल मल्टीप्लाई विद ऑल द वैल्यूज इन द डिनोमिनेटर, एंड 3 विल मल्टीप्लाई विद ऑल द वैल्यूज इन द न्यूमरेटर। -8 -2f, 18 -15f। रीअरेंज करेंगे, हमेशा छोटी वैल्यू को शिफ्ट करते हैं, तो दिस -15 इज स्मॉलर, द -15 इज स्मॉलर देन -2f। ठीक है, तो -15 लेफ्ट पे गया तो प्लस का हो गया, और -8 इज द स्मॉलर वैल्यू, राइट पे गया तो प्लस का हो जाएगा। मिल गया f। 15 + 2 17f, 18 + 8 26। तो क्या आ गया? f इज इक्वल टू 26 सर 17f नहीं होगा, 17f आपने, वो आपने गलत हाँ लिखा है, 13f है। 13f आप सही है। तो ये आ गया मेरे जी पास जी 2 सर। आ जाएगा। हाँ सॉरी माय बैड बेटा, सो सॉरी, थैंक यू मेरा बच्चा। तो f इज इक्वल टू 26/13, तो f की वैल्यू आ गई 2। अब बताओ भाई, क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगा था, लॉजिकली कुछ भी मुश्किल नहीं है, लॉजिकली कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब अगर, हाँ मनाए, थैंक यू बेटा मुझे करेक्ट करने के लिए, सो नाइस ऑफ यू। अब इसमें कुछ भी मुश्किल लग रहा है तो बताइए, कोई बात नहीं हमजा, बेहतरीन हो गया। पेपर 2 के क्वेश्चन थोड़े से हाई ऑर्डर होते हैं, थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप हैं थर्ड पार्ट,
जरा पढ़िए क्या बोल रहा है। जिसने ये वाला पार्ट कर लिया ना, हाँ हाँ ये भेजेंगे भाई, क्यों नहीं भेजेंगे, सब भेजेंगे सब भेजेंगे, टेंशन ना लो। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डीएफ इज 3 2y इज इक्वल टू 3x प्लस k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कौन है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डीएफ। रिमेंबर दैट ये b का ही पार्ट है, ये b का ही 2 पार्ट है, तो ये इससे लिंक्ड है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट क्या था डीएफ का? 3/2। देखो यहाँ 3/2 बन भी रहा है, चेक कर रहा हूँ कैसे, ये देखो 2y है ना, तो हम रीअरेंज करेंगे तो 3x प्लस के अपॉन में 2 दो जगह आ गया, हमने बताया था। तो देखो 3/2 बन गया, जो ऊपर ग्रेडियंट था ना ये रहा। ठीक है, ग्रेडियंट तो आ गया। मुझे के चाहिए, के कौन है मेरा? के कौन है मेरा? द के इज y इंटरसेप्ट, है ना, मतलब मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए। y इंटरसेप्ट के लिए क्या 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 होना चाहिए मेरे पास? ना मिड पॉइंट वर्ड की जरूरत नहीं है। y इंटरसेप्ट के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास? d या f में से कोई एक कोऑर्डिनेट। हाँ मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। किसका? डी और एफ का। तो बताओ भाई डी और एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 4,6। डी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले। डी के कोऑर्डिनेट थे 4,6 और एफ के कोऑर्डिनेट क्या थे? -5,5 है। तो -2, क्योंकि टू वैल्यू आई है ना एफ की, और 5f मतलब 5 to the 10। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, वेरी गुड। तो मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट निकालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसका? डी एफ का, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मिड पॉइंट, हम मिड पॉइंट निकालेंगे डी एफ का, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमें, वो हम एक्स वाई की जगह रखेंगे तो के मिल सकता है। तो मिड पॉइंट क्या गया बेटा? 4 -2 4 + 2, तो आ गया 2, मतलब x1 + x2/2, कुछ ऐसा। y1 + y2/2, कुछ ऐसा। सिंप्लीफाई किया तो क्या बनेगा? 1,8। लो भाई मिड पॉइंट आ गया। ये जो मिड पॉइंट आया है मेरे पास डी एफ का, ये कोऑर्डिनेट भी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। अब आसान है मेरे लिए, मैं कोऑर्डिनेट पुट कर देता हूँ क्वेश्चन में, के मिल जाएगा। यस एब्सोल्युटली राइट, सही कह रहे हैं आप लोग। मीटिंग चैट में सब बच्चों से पढ़ ली, वेरी गुड। क्या रह गया भाई? 3 मारेगा माइनस हो जाएगा, 2 8 are 16 - 3 13 इज इक्वल टू के। हाँ जी, एनी कंफ्यूजन? यस ईमान बेटा वेरी गुड, हमजा भाई वेरी गुड, मनाहिल बेटा वेरी गुड, सबसे अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, सही है, वेरी गुड हो गया। अभी कोई डाउट? कितना नंबर का क्वेश्चन था? 7 मार्क्स का, 4 का ऊपर 3 मार्क्स का ये, और 5 मार्क्स का ऊपर 5 + 4 9 9 + 3 12 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। किसको समझ में नहीं आया? कंफ्यूजन क्लियर हो गया? ओके ग्रेट, चलो ग्रेट, माशाल्लाह जबरदस्त काम बन गया भाई हमारा। क्या क्वेश्चन नंबर 10 जरा रिव्यू कर लो, इसमें कुछ ऐसा है जो वाकई मुझे करवाना पड़े? यार इफ यू गाइस वांट टू डू इट राइट अवे, करके देख लो इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि करना चाहिए आपको, जरा देख लो करके, इसके कोई मुश्किल है? चेक कर लो। 5 5 कितने, 5 मार्क्स का नहीं, 6 3 + 3 6 7 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। देख लो क्वेश्चन 10 में कुछ मुश्किल है? तीनों पार्ट्स में, खासतौर पे सी पार्ट। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रही हो मनाइल। इजी है। चलो ग्रेट, वेरी गुड, हम आगे बढ़ जाते हैं फिर। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है और अगर उसको ग्रुप में कहते हुए प्रॉब्लम लग रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं रिपीट करवा दूंगा नाम लिए वगैरह। ठीक है, आपका नाम भी लेंगे और सारा रिपीट करवा देंगे, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, इस चीज से बेफिक्र है ना। वैसे सवाल पूछता है, शर्माना नहीं चाहिए, भले ना आए समझ में। नहीं यार तो नहीं आ रहा, क्या करें अब, पढ़ना पड़ेगा। चले भाई, जरा पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, शाबाश। PQR is an isosceles triangle with PQ is equals to QR. P is the point, 1,5, and Q is the point, 5,1. Angle PRQ is on the right angle triangle. Is on right angle, is that triangle. To find the coordinates for one possible value or position of R, you may use grid to help you.
कहना ग्रिड भले यूज कर लें आप अपनी हेल्प के लिए भाई, लेकिन सवाल है घुमाने वाला दिमाग। आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थॉरली, एंड इफ यू डोंट मेक इट तो मुझे बताइए। डायग्राम बनानी, डायग्राम बनाओ, ग्राफ यूज करना, ग्राफ यूज करो, जो ऐसा दिल करता है वैसे करो। तो ये 1 है तो 1 2 3 4 5, ये मेरा पी होना चाहिए है ना भाई, 1,5। क्यू क्या है 5,1, 1 2 3 4 5, 5,1, ये मेरा क्यू होना चाहिए, कुछ ऐसा, ठीक है। और पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक हो गया। आइसोसेलेस जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी ये वाली भी है, एक पॉसिबिलिटी ये वाली है, इवन एक पॉसिबिलिटी ये वाली भी है, और इवन एक पॉसिबिलिटी ये वाली भी। ये सब आर की पॉसिबिलिटीज हैं भाई, हर तरह से आइसोसेलेस बन रहा है, हर तरह से आइसोसेलेस बन रहा है, बल्कि पॉसिबिलिटी यहाँ भी तो है, इधर भी है, ये भी सारे आइसोसेलेस ही हैं। और हमसे क्या बोला है, कोई भी एक पॉसिबल पोजीशन आ दो, कितनी है लगी, 2 मिनट में बता दिया आपने पॉसिबल पोजीशन, है ना, निकाल लिया ना कोऑर्डिनेट ड्रॉ करके, कोई इतनी टेंशन की बात ही नहीं है, कोई बात नहीं, मुश्किल बात पे हमजा कुछ भी। मनाहिल मेरा बच्चा, देखो मेरी बेटी ने किया, सुनना गौर से, मैंने इसको अपना ग्राफ बनाया और मैंने ग्राफ बना के प्लॉट करना स्टार्ट किया। वो क्या बोल रहे हैं, मैंने सारे पॉइंट्स अपने प्लॉट किए, जिसको समझ में नहीं आया ना, ग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, सुन ले जरा गौर से सुनना, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले मेरी बेटी, मैंने कहा यार 5,1 है, मैं इस पर अपने प्लॉटिंग करता हूँ, ये मेरा 1 2 3 4 5, 5 तक वैल्यूज है ना, 1 2 3 4 5, ओ सॉरी 4 5, ठीक है। अच्छा, ये है P1,5, तो ये रहा, Q है 5,1, ये रहा, मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अगर मैं ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये इनके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ रही है, आ रही है ना, है ना। तो क्या करेंगे हम, देखो अब देखो आर की पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो कोई भी, वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर वन पॉसिबल पोजीशन। बेटा कोई भी आ दो, अब इतने सारे बना दिए मैंने भी, जो दिल के बना दो। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ मुझे ये वाला लग रहा है जहां मैंने डॉट लगाया, तो क्या है 2,2, सही होगा, आइसोसेलेस है, कोई भी बता देंगे, ठीक है। इज इट मेकिंग सेंस नाउ, अब तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा नेटवर्क का, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ए द पॉइंट एंड बी द पॉइंट, बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए हमें, पासेस टू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पासेस टू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी मतलब कि बाइसेक्टर वाली बात हो रही है, बाइसेक्टर वर्ड यूज नहीं किया, बस बाइसेक्टर वाली बात हो रही है, बाइसेक्टर वर्ड यूज नहीं किया। हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, हम इजीली कर लेंगे इस काम को। हमने क्या किया, सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी, 2/2 मतलब 1, और -5 प्लस -2/2 मतलब -1, मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। ग्रेडियंट भी निकालते हैं किसका, ए बी का, क्या है 3 -5 मतलब 8, और 3 -1 मतलब 4, तो ग्रेडियंट आ गया 2, तो परपेंडिकुलर ग्रेडियंट क्या बन गया, परपेंडिकुलर टू ए बी के लिए ग्रेडियंट क्या हो गया, -1/2। I got the gradient, I got the coordinates of the line which is perpendicular to AB. So I can easily find out the equation by finding the value of C. What is your y? -1. What is your m? -1/2. What is your x? 1. Minus का 1/2 will go on left hand side, plus का 1/2 हो जाएगा,
तो डिनोमिनेटर सेम कर लें या भले डायरेक्ट कर लें या कैलकुलेटर से कर लें, जिस तरह आपको ठीक लगे। -2 + 1 माइनस का 1/2. I got the value of c as well. So now there is no problem while finding the equation. -1/2 x minus -1/2. लीजिए आपकी क्वेश्चन आ गई, 5 मार्क्स आपकी पॉकेट में। हाँ भाई, what do you guys think? Making sense? इजी हो गया? हाँ, अच्छा हो गया ना भाई, चलो ग्रेट। हाँ हाँ बोलो हमजा, क्या हुआ? और क्या और बेटा? लेंथ है, इक्वेशन है, परपेंडिकुलर, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं।